मिस्ड आउट, ओके सर। वो कर लेते हैं आज। ठीक है। पहले करा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छूट गया, क्योंकि ठीक। ट्रिग्नोमेट्री एंडलेस है, हाँ बताओ। काफ़ी ज़्यादा है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आना चाहिए। ऑल राइट, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ बेसिक relations between sides and angles of a triangle. Okay, so matlab now we are going to link the sides and the triangle. So our ओके। concentration is any triangle, and we will study this. तो हमारा कोई भी ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, और द साइड लेंथ ए बी सी है, ओके। और जनरली वैसे ए बी सी ऐसे लिख लेते हैं वर्टिसेस को। ए के सामने वाला जो होता है उसी को ए ले लेते हैं, सी के सामने वाली सी लेंथ का होता है, बी के सामने बी लेंथ वाला है। सो मिलन। दीज आर लेंथ, ओके। these are the lengths, and these are of course the angles: angle A, angle B, angle C. Okay, the first relationship, obviously, this is not a relationship. All relationships come from this. Okay, A plus B is greater than C. Sum of any two sides is greater than the third side. हम्म। And all sides are positive in a triangle. तो ये हमें मालूम है ऑलरेडी। तो पहला रिलेशनशिप जो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज द साइन रूल और साइन फॉर्मूला। Okay, now the sine formula states this: the side length of the side divided by the sine of angle opposite to it. So ये आपका एंगल है, उसके ऑपोजिट ए है, ये एंगल सी है, और हम्म। इसके ऑपोजिट साइड सी है, लेंथ, ये एंगल बी है, और इसके सामने साइड है ये। तो ये जो ए बाय साइन ए is equal to b by sin b is equal to c upon sin c. This is called as a sine rule. In any triangle, it is valid. ओके। The ratio of the side and the sine of angle opposite to it. This is the side of length A and the sine of angle opposite to it. This is a constant. ओके। Same ratio आती है सबकी. Okay? This is one. And these rules are also used in physics, by the way. Okay? The ओके। second rule which you should know is the cosine formula. The way we have linked angle with sine and side, similarly there is a formula in cosine which is cos of any angle can be linked to the lengths like this: b square plus c square minus a square upon 2bc. This is valid for all the three situations, which means if I have to write cos of b, so I will write the other two sides first, a square plus c square. b वाला जो होगा वो subtract होगा, 2ac. And if I have to write cos of c, this is a square plus b square minus c square upon 2ab. Okay, this is the rule of cosine. ओके।
मतलब आपने एंगल और लेंथ को लिंक कर दिया, ठीक है। ओके, सो टू third rule which you do know in any triangle is the formula of projection. ठीक है, प्रोजेक्शन ठीक मीन्स है। इफ यू हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, लाइक अभी ऊपर जो बनाया था, कोई भी ट्राइंगल हो, ये लेंथ है सेंटीमीटर या एंगल से है, हम्म। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेज द लेंथ ऑफ सी कैन बी रिटन एज ए टाइम्स cos b प्लस b टाइम्स cos a. Projection formula. understood। This links तो मतलब ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन ठीक है। फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन अगर आप करोगे तो यू विल रियलाइज व्हाई द वर्ड प्रोजेक्शन। अच्छा। इफ यू डू द डेरिवेशन, यू आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग वन साइड एज द सम ऑफ टू अदर साइड्स विद द हेल्प ऑफ कॉस। सी को ए और बी में लिख रहे हो, लेकिन साथ में कॉस बी कॉस ए लगा रहे हो, तो डेरिवेशन होती है। हमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी है अभी, ठीक है। वी डोंट नीड टू डू एनी डेरिवेशन। हम्म। ओके, तीसरा रूल जो है, सॉरी फोर्थ रूल इज कॉल्ड द टेंजेंट रूल, or Napier's analogy. Okay, so in any triangle ABC, again A, B, C, tan of A minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B cot of C by 2. ये टेंजेंट का है, इसकी भी डेरिवेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द साइन रूल, ओके। लेकिन tan को भी लिंक कर दिया गया अब। हम्म। These are the four rules that have to be understood, that you should know about how to link। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें साइड की लेंथ है और एंगल लाना है, तो मान लो ये यू कैन यूज दिस राइट, कोसाइन। इफ यू नो ऑल द साइड्स यू कैन फाइंड ऑल द एंगल्स। यस सर। इफ यू नो फॉर एग्जांपल ए मालूम है और साइन ऑफ ए मालूम है और बी मालूम है, तो साइन ऑफ बी भी आ जाएगा, राइट। तो ये दिस selection of the rule is important. So you may be given questions where you're given the angles of a triangle and you have to find the, जैसे एंगल दे दिया आपको, तो आपको बोलते हैं कि find the length, okay, vice versa, some technique will help. So sometimes you have to combine these two, ये और ये मिक्स करने पड़ते हैं। ओके, आई एम टेलिंग यू पॉसिबिलिटीज, एक ही से सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, कई बार एक से भी हो जाते हैं, कई बार दो को यूज करना पड़ता है, साइन को, कोसाइन को, प्रोजेक्शन को, टेंजेंट को मिक्सिंग करनी पड़ती है। ठीक है।
ओके okay, so let's say you're given a question where the angles of the triangle are given to you. So angles are given to you. Sorry, you have to find the angles and the sides are given. So side Okay. is given to be 3 plus root 3. B is equal to 2 root 3. C is equal to root 6. So they ask you what are the angles. Right? So which rule do you think will apply? You know A, B, C. If you go to the list, which one do you like? Where three sides are known and you can find the angle. ये वाला right? हाँ A, ये B, C वाले मैंने सारे आ जाएंगे, right? यस सर. Okay. All right. So to prove that B plus C by 11 is equal to C plus A by 12 is equal to A plus B by 13. This is given. Prove क्या करना है? Cos of A divided by 7 is equal to cos of B by 19 is equal to cos of C by 25. ठीक है, तो ये ठीक जो है. गिवन है ये सारे कांस्टेंट्स हैं. सो व्हाट यू सोल्यूशन में क्या करोगे आप? ये जनरल मेथड ही एक तरह से कई जगह यूज होगा. B प्लस सी बाय 11 इज इक्वल टू C प्लस A बाय 12 इज इक्वल टू A प्लस B बाय 13 को कांस्टेंट डाल दो, सम नंबर. सो B प्लस C विल बिकम 11K, C plus A is equal to 12K and A plus B is equal to 13K. ओके. ठीक है, ठीक है. और now if you see the question you are given these B plus C. तो हमारा बेसिकली प्रूव ये करना है कोसाइन का. वो हिंट दे रहा है हमें कि विच रूल विल बी बेनिफिशियल. ओके, तो ये आ गए हमारे पास, और कोसाइन के रूल हमें मालूम है. फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ A is written as B square plus C square minus A square upon 2BC. Cos of B is equal to A square plus C square minus B square upon 2AC. And cos of C is equal to A square plus B square minus C square upon 2AB. और आंसर में दिख रहा है जो प्रूव करना है उसमें एंगल आ रहे हैं cos A, cos B, cos C, और इस तरफ लेंथ्स हैं काफ़ी सारी. हाँ. ऑब्वियसली K की टर्म्स में, तो हाउ डू वी, सो इसमें हम क्या करते हैं, वी पुट द वैल्यूज इन दीज. सो हमें cos A चाहिए तो मैं यहाँ B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर 2BC वगैरह चाहिए मेरे को. सो आई सॉल्व दीज थ्री. ओके, फर्स्ट इक्वेशन A plus B is plus 0C is equal to 13K. 0A plus 1B plus 1C is equal to 11K. 1A plus 0B plus 1C is equal to 12K. तो आप ये दो तीनों को सॉल्व कर लो. तो A B C को सॉल्व करोगे एलिमिनेट करके. सो A comes out to be equal to 7K, B comes out to be equal to 6K and C comes out to be equal to 5K. सब K में आया. अब कोसाइन का रूल मालूम है, तो से
cos of A is equal to 6k whole square plus 5k whole square minus 7k whole square upon 2 into 6k into C 5k. So this is 36k square plus 25k square minus 49k square upon 2 6 are 12, 12 5 are 60, 60 k square. तो न्यूमरेटर में कितना है 61 Yes, sir. minus 49 roughly 12. So cos A is equal to 1 by 12. Hmm. Right? If you see what is to be proven, ये प्रूव करना था हमें. cos A कितना आया हमारा कैलकुलेशन में, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने पे हाउ इज दिस, वेट, 36 एंड 25 इज हाउ मच, 61 ही होता है. और cos ऑफ A निकाला है, हाँ ठीक है यही आएगा 1 बाय 12 फाइव्स और सॉरी 60 है ना नीचे, Hmm. 1 बाय 5 हो गया ना. देन 5 फाइंड cos ऑफ B एंड देन फाइंड cos ऑफ C. सो cos ऑफ B आपका आ गया ओके 19 बाय 35 और cos ऑफ C अगर आप सॉल्व करोगे इट विल बी 25 बाय 35. तो cos ऑफ A आ रहा है 1 बाय 5. Hmm. ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको भी 35 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 अपॉन 35. सो हमारा बेसिकली आ गया cos A इज इक्वल टू 7 बाय 35, cos ऑफ B इज इक्वल टू 19 बाय 35, cos ऑफ C इज इक्वल टू 25 बाय 35. सो cos A सब में 35 निकाल देते हैं बाहर. ठीक है. और तो अगर हमें इसका मतलब cos A बाय 35, सॉरी cos A बाय 7, cos A बाय 7 इज इक्वल टू 1 बाय 35, Correct. cos B is upon 19 is equal to 1 by 35, Hmm. and cos C by 25 is equal to 1 by 35. So ये सारे बराबर हो गए, which means cos of A upon 7 is equal to cos of B upon 19 is equal to cos of C upon 25. सही है. Yes, sir. कुछ नहीं करा था, बस हाँ. ये जो गिवन था इसको के डाल दिया. के वाली ट्रिक बहुत जगह यूज होने वाली है. ए बी सी के में निकाल लिए, और क्योंकि यहाँ पे डिवाइड ही हो रहे हैं तो के कट जाना था यहाँ पे. Correct. के स्क्वायर नीचे भी के आ गया था यहाँ पे, Hmm. तो सब जगह कट गया. और फिर सॉल्व करने के बाद देखा कि एल नीचे जो वो है डिनोमिनेटर वो बराबर, ये 1/5 था तो इसे सेम कर दिया, सेम ही रेशियो आ गई सबकी. हेंस प्रूव्ड. Hmm. तो इसमें जो मेन ट्रिक रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू शुड नो ऑल द ट्रिक्स, साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन, नेपियर, एंड देन इट इज अबाउट हाउ डू यू सिलेक्ट विच फॉर्मूला विल यू सिलेक्ट टू बी एबल टू सॉल्व दिस. कौन से वाला चुनोगे सॉल्व करने के लिए, राइट. जनरली के वाली ट्रिक इज अ वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ट्रिक विच इज यूज्ड Okay. क्वाइट ऑफन, मतलब काफी यूज होती है. Okay, let me show you NCRT. I'm opening. Okay, NCRT में in trigonometry, I will paste the question, so आपको आइडिया हो जाएगा कि ये
चैप्टर नंबर कौन सा एनसीईआरटी का ये? कौन आई सी क्लास थिंक का? ट्रिग्नोमेट्री कौन सी क्लास का? 11th? 11th में ही हो गई ना. ट्रिगो इज लीनियर इनइक्वालिटी 12th. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है. ओके. 10th. Trigonometric functions. Okay. I am looking at NCERT. Sine inverse, cos inverse, tan to tan x. Mathematics miscellaneous examples. इन्होंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए. ओके. दे हैव नॉट. इन्होंने सप्लीमेंट्री मटेरियल भी लेके नीचे डाला है. इनफाइनाइट जीपी, लॉगरिथमिक फंक्शंस. अच्छा, एनसीईआरटी ने एनीवे ये जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यू हैव टू डू दिस. यू डोंट. एंट्रेंस में आता है, किसी भी एंट्रेंस में. यू वांट टू गिव बिट सेट पिलानी, इट इज कमिंग. ओके. सिंपल. मतलब कोई एस्केप ही नहीं है, करना ही पड़ता है. पहले करा हुआ ये? नहीं, मुश्किल है. ओके, सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ बी cos square c by 2 plus c cos square b by 2. Okay. ओके. And you have to solve this. सॉल्व करना है इसको. और क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इन टर्म्स ऑफ k again. Okay. Where k is the perimeter. Perimeter मतलब तीनों साइडों का सम. तो आपको ये सारा का सारा जो है, यू हैव टू के की टर्म्स में लेके आना है. मतलब a प्लस बी प्लस सी. पेरीमीटर इज a प्लस बी प्लस सी. सो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दो. What do you think should be the trick? You can look at the tricks in your pocket. The projection formula, the cosine formula, the sine formula. Which one has a capability to get rid of cosine square c by and cosine square b by 2 and get you something like this? हो सकता है 2 times perimeter आ जाए या 3 times आ जाए, लेकिन ये how will you convert this to this? सोच के देखो. See, देखो a प्लस बी प्लस सी में लाना ना किसी तरह से. मे बी 3 times 4 times a प्लस बी प्लस, बट b और c दे रखा है और cos स्क्वायर, तो a तो मिसिंग है इसमें पूरा. यस सर. If you notice, a is missing. And look at projection formula. देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ताकत क्या है कि इट इज एवरीथिंग. सी ए बी, राइट. अगर इफ यू रिमेंबर cos स्क्वायर c by 2 को लिख सकते हैं हम cos 1 प्लस cos c by 2. यस सर. इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos b by 2. लिख दो. डू इट, करो देखो.
1 प्लस कॉस सी बाय 2, मतलब सोल्यूशन कर लो यहीं पे, तो मैं लिख देता हूँ भाई, चलो 1 प्लस कॉस सी बाय 2 प्लस सी 1 प्लस cos b by 2. Okay, if I open this, ये बन गया. अब बैलेंस में इफ यू नोटिस a प्लस बी प्लस सी में ये तो आ गया. हम्म इफ आई टेक हाफ कॉमन क्या आता देखो, बाय 2 निकल जाए. हाँ. और ये कौन सा फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन में जाके चेक करो. प्रोजेक्शन में ये वाला थर्ड वाला. ए, तो ये ए हो गया ना. सो बी दिस इज नहीं ए. है तो. अच्छा. हाँ, ए मिसिंग है ना, देखो बी कॉस सी और सी कॉस बी. हम्म ए मिसिंग है, ए ही है. थर्ड फॉर्म. सो इट इज बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए बाय 2, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट. यस सर. तो बेसिकली इट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो बन गया के बाय 2. तो आपने ये जो चीज़ थी सारी की सारी, इसे कन्वर्ट करके देखो कहाँ तक ले आए, सिर्फ इसी ट्रिक से. ऑब्वियसली थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई है ये वाली, प्रोजेक्शन फॉर्मूला था ना ये. यस सर. नेक्स्ट पेज आई एम ओपनिंग. Okay, so let's say you are given a question where a simple one to start with. Okay, if there is a triangle uh, in, so A is equal to 4, B is equal to 12, angle B is equal to 60 degree, find the value of sine of A. Okay, 1 by 2 root 3, 1 upon 3 root 2, third is 2 upon root 3, d root 3 by 2. So quickly you will have to think through कि कौन सा फॉर्मूला फिट करूं मैं ये निकालने के लिए. You can go back and check all the formulas and then decide what strategy to apply. B दे रखा है, 4 12 दे रखी है, तो which formula do you think will be most beneficial? देखो कोसाइन के लिए तीनों साइड चाहिए होती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे तीनों. यहाँ दो दे रखी हैं, यस सर. और वैसे भी साइन है तो साइन ही लग रहा है. ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन इज इक्वल टू के कांस्टेंट. लगा के देखो. सो 12 अपॉन साइन बी you can go back and look at the formulas if you want to.
सही है, बस ठीक है, आंसर आ जाएगा इससे। एक अननोन है आंसर। यस सर। शुरू में वी हैव टू डू सिंपल वंस, दे अपीयर सिंपल बट दे आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा टाइम हाँ लगता है थोड़ा सा। हाँ। जब वो आइडेंटिफिकेशन आ जाती है फिर मिक्सिंग भी आ जाएगी। हम्म, ठीक है, साइन ए ही निकालना है। यस सर। काट दो, 2 6 और 6 को लिख लो 3 × 2। 2√3 आ गया, 1/2। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। सो इन अ ट्राइंगल, the angles in a triangle A, B, C are the angles, and these are given to be in AP। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं आपको। Additionally, if B by C is equal to √3/2, then angle A is equal to, you have to find, is it pi/6, is it pi/4, is it 5 pi/12, or is it pi/2? एपी में दे रखे हैं एंगल, मतलब बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस, सॉरी, सी माइनस बी। आई थिंक आई विल जस्ट, यू नो एपी राइट, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। हम्म, ओके, अगर 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, दिस इज गिवन। एपी का मतलब यही है। एंड बी बाय सी इज गिवन टू बी, दिस इज √3, सॉरी, ओके, क्लियर नहीं दिख रहा। ओके। तो एक ये मालूम है और एक ये मालूम है, बी बाय सी इज इक्वल टू √3/√2। निकालना क्या है, एंगल ए। तो अब यू हैव टू थिंक थ्रू व्हाट स्ट्रेटजी विल बी बेस्ट टू फाइंड एंगल ए पे फोकस है सारा का सारा। एपी में भी दे रखा है और निकालना लेकिन एंगल ए है। एक ये भी रेशियो ऑफ 2 साइड्स भी दे रखी है, रेशियो ऑफ 2 साइड्स भी मालूम है। दिस में बी अ वेरी बिग हिंट why the ratio of 2 sides is given। जनरली जैसे a by sin A is equal to b by sin B is equal to c by sin C होता है ना, तो हम्म, इसमें मैं आई कैन राइट इट एज b by c is equal to sin B अपॉन sin C। सिर्फ इन दोनों को ले लो। ठीक है। तो b by c अगर मुझे दे रखा है तो sin B अपॉन sin C की भी तो रेशियो दे रखी है, हिंट हम्म, है। तो ये तो पक्का है कि ये साइन की तरफ झुकाना है, इसका मतलब इट इज बेंट टुवर्ड्स साइन, राइट। यस सर। there is an emphasis on sign। और ये भी यूज करना है, और ये भी मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर से मालूम है कि
2b is equal to c plus a. तो एलिमिनेशन अगर मुझे चाहिए ए की, ए निकालना है मुझे, राइट? तो मैं मतलब इन दोनों को अगर सॉल्व भी कर लूँ तो c प्लस ए की कितनी वैल्यू आ रही है? 2b Yes, sir. ap से Hmm. यहाँ डाल देता हूँ मैं a प्लस सी की वैल्यू 2b, तो 3b कितना आ गया इक्वल टू b इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, Yes, sir. b निकल गया। तो इसका मतलब a प्लस सी का जो सम है इट इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट? Hmm. ये भी मालूम चल गया। तो दो एंगल्स ए और सी लिंक हो गए, निकालना भी ए ही है, और बी और सी को लिंक कर रखा है इसने, ओके। और इवन दिस शुड बी इक्वल टू, आई थिंक बी बाय सी रेशो वाइज है, तो ए और सी को लिंक कर दिया इसने। तो अगर मैं ये दोनों लूँ, ये वाला और ये वाला, तो सो दिस ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सो √3/2, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, और ये बी बाय सी और ए और बी, Hmm. ए में लाना है आंसर, बी मालूम चल चुका है। और सो इफ आई नो बी बाय द वे, व्हाट इज बी? सो बी बाय सी इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 √3/2 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू √3/√2। तो साइन सीधी आ जाएगा इससे, हाँ आ जाएगा। है ना? दिख रहा है, आ रहा है। हम्म। √3/2 साइन सी इज इक्वल टू √3/√2, ये भी कट गया। सो हम्म। साइन सी इज इक्वल टू 1/√2, सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सो बी मालूम है, ए मालूम, ए ढूंढना है, और 45 डिग्रीज, तो ए कितना आ गया इक्वल टू 75 डिग्रीज। 60 प्लस 45 105, थर्ड एंगल यस 75। सर। हाँ। तो हमें निकालना क्या था? फाइंड साइन ऑफ ए निकालना है, ये रहा। हम्म। 5 into 180 divided by 12, this is 12 15s are, AP से एक एंगल निकला, यहाँ से दूसरा एंगल निकला, तीसरा एंगल आ गया, तीसरा एंगल इससे आ गया। हम्म। तो मतलब these are linked to each other. Somehow you have to just do linkages and select the right property of the triangle. Cosine property यूज कर लो, नेपियर्स कर लो, कोसाइन कर लो, क्या पता किससे आ जाए। Okay, I'm going to the next page again. ओके। You want to try one? एक ट्राई करें? ठीक है। Okay, so if it is given, if 2 cos B is equal to a/2, okay, you have to tell what type of triangle is it. Is it a right angle triangle? Equilateral triangle?
isosceles triangle or none of these? काफी कम हिंट दिया हुआ है। Yes, sir. cos b, कोसाइन रूल। ओके, किसी भी ट्रायंगल में वैसे cos b का एक और फॉर्मूला भी तो होता है। cos b अगर लिखना हो किसी ट्रायंगल में तो क्या लिखते हैं? कोसाइन प्रॉपर्टी से। A square plus और C तो कोई हो, square by हाँ हाँ, लिख लो। मुझे तो और कोई होप नजर नजर नहीं आ रही। वेयर डू यू स्टार्ट दिस? दिस इज द वही। ओनली होप, क्योंकि अगर राइट एंगल वगैरह है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस वो, है ना। हम्म। और कॉस में कुछ नजर नहीं आ रहा, करें क्या? क्योंकि मैं कॉस बी में ये डाल दूंगा, कॉस की वैल्यू, और कुछ समझ नहीं आ रहा। Yes, sir. प्रोजेक्शन दिख नहीं रही क्योंकि तीन साइड नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है। दैट कॉम्प्लिकेशन इज नॉट विजिबल।
आई थिंक इससे कुछ हो तो जाएगा सॉल्व करने पे। अच्छा ये स्क्वायर है इस तरफ, ओहो। यस सर। ना स्क्वायरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा नहीं स्क्वायर हो गया, नहीं। नीचे ए सी है, अच्छा। ओके, नॉट बैड, नॉट। तो कट भी नहीं रहा, कॉस बी A/2। इसको 2 डालना है ना, 2 कॉस बी। अच्छा डाल दिया है। कॉस बी को क्या डाला, A/2, ठीक है। A/4 है, तो अच्छा। A/4, राइट। A²/2। ट्रायंगल कौन कौन से ऑप्शन है, इक्विलेटरल सारे साइड बराबर, नहीं यार। राइट एंगल ट्रायंगल का भी कुछ बन नहीं रहा। A²/2 एंड A²/6 क्रॉस भी कर लें, ये गया नहीं ना। नहीं। और ये था कोसाइन में, और मुझे लग रहा था A² + B² = C², ऐसे कुछ राइट एंगल बन जाएगा अपने आप ही। नहीं बने। कॉस ऑफ बी, क्या करा जाए। देन द ट्राइंगल इज आइसोसलेस। आइसोसलेस ट्राइंगल है। 2 कॉस बी, सिर्फ कॉस बी दे दिया, एक एंगल और एक वो। कैन वी कन्वर्ट दिस टू, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि और कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेट मी गो बैक टू द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। और कोई ढंग की दिख रही थी, एक तो एक प्रोजेक्शन का कोई यूज़ नहीं लग रहा मुझे, नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा नेपियर इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। माई ओनली होप इज कॉस एंड cos of, आई थॉट इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिकॉज इसमें कुछ करना नहीं होगा। हम्म। वैसे नन ऑफ दिस भी आ रहा है। ओके बट और कोई एंगल नहीं है, व्हाट डू यू डू, A/2, A/2। ये क्या नेपियर्स तो नहीं है छुपी हुई, नहीं उसमें भी tan आता है, हाँ। tan आ रहा है उसमें भी, और एक cot भी आ रहा है। इसमें cot भी नहीं है, इसमें सिर्फ एंगल ही, एक एंगल है और एक साइड है। जनरली इस तरह से लिंकेज जो है वो साइन में होती है, साइड और उसकी, A/sin A। हम्म। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जो लिंकेज बिठाई, दैट इज कॉस एंड एंगल की लिंकेज बिठा दी। अच्छा which makes it quite difficult।
हाउ डू वी टैकल दिस? प्रॉपर्टीज में नेपियर्स cos B is equal to A by 2. Okay, none of these. cos के अलावा और कोई रूल लग नहीं रहा फ्रेंकली. Yes, sir. मतलब there is no reason why I will go to the none of them is helping me. Why should I even look at them? This is question number. No, this is in any triangle. Two cos B is equal to A by 2. Yes. What can be done to solve this? cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फायदा होगा? नहीं. मतलब cos B को सीधा डाल दिया A by 4. How is cos B? ठीक है, लेट्स लीव दिस. कोई हिंट समझ नहीं आ रहा कि कैसे फिट होगा आंसर. लेट्स ट्राई वन मोर. Okay. This was question number 8. The answer is isosceles. मतलब we will have to prove two sides are equal. The answer is isosceles. But कोई दिमाग अभी चल नहीं रहा. कोई बात नहीं. Let's try one more. Okay. So let's say दो sides को लाना है. मतलब एक तो ये आया था. Anyway, अगर इतनी देर में स्ट्राइक नहीं हुआ तो अब होगा भी नहीं. Okay, so let's try something. All right. Okay, let's say if you're given in a triangle, okay, in a triangle, if it is given that A is equal to 2B. Okay, let me go to the next page. Page number, add page. Okay.
So my question is, if in a triangle A is equal to 2B and it is given that the difference of A and B is pi by 3. Okay, you have to find the value of C. Right? If you go to the formulas, see which formula is the closest. देखो, ये दिख रहा है? Napier's. Where is this? Napier. पेज नंबर हमारा कौन सा था, जो लिखे था ये. लुक एट नेपियर. ये दिख रहा है ये वाला? which is tan of a minus b by 2. page 1 पे. Yes. Go to the tangent rule. Yes sir. a minus b. और हमारा जो क्वेश्चन है, इफ यू गो बैक, उसमें भी a माइनस b दिया हुआ है. और ध्यान से अगर क्वेश्चन की फॉर्मेट को देखोगे तो लॉट ऑफ a b c is involved. Okay. Our goal is to find this. To find this. So this is given and this is given. तो नेपियर से लगा दो. tan of a minus b by 2 क्या होता है? इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी. देखो a माइनस बी भी मालूम है, ये नहीं मालूम है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी. सॉरी, लेकिन रिलेशनशिप तो मालूम ही है. और ये होता है cot ऑफ c बाय 2. सो tan ऑफ pi by 6 is equal to so this is cot of c by 2 अगर मैं लूँ is equal to cot 30. tan 60 is root 3. तो tan 60 is equal to root 3. So cot 60 is 1 by root 3. Yes sir. तो ये basically cot of 60 है. So c by 2 is equal to 60. C is equal to 120. सही करिए कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लें. सॉरी, नहीं, ये कटेगा तो दिस विल बिकम रूट 3 हियर. सो कॉट c by 2 विल बी रूट 3, which means cot of 30. नेपियर भी कैसे लगता, दिख गया? Napier, actually, if you see the angles which are getting subtracted और उनकी जो साइड्स हैं ए और बी, एक सिर्फ एक्स्ट्रा जो आता है वो सी आता है. तो ये Yes, sir. एंगल ए बी साइड दे रखे थे तो कट गए, बी भी कट गया, और लेकिन ए माइनस बी more decisive. Okay, so let's say you have to solve a square minus b square upon a square plus b square is equal to sine of a minus b upon sine of a plus b. ये दिया हुआ है. So we have to prove whether the triangle is
राइट एंगल और आइसोसेलेस, दो चॉइस है मतलब एक ही के अंदर. सेकंड इज इट्स राइट एंगल्ड and isosceles, and then equilateral, or it is none of these. मेरे को जो समझ में आ रहा है ना कि आई शुड यूज दिस साइन ऑफ ए माइनस साइन ए जो होता है, इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 sin A/2 cos ऑफ A/2, राइट. हम्म तो मुझे ये बहुत मतलब नेपियर्स की तरह ही लग रहा है, क्योंकि इसमें इसमें हंच की है 2 sin ऑफ A-B/2 एंड मतलब 2 sin A cos B/2 A-B/2 अपॉन 2 sin A plus B/2 cos of A plus B/2 A² minus B² upon A² plus B². क्योंकि A plus B जो होता है ना, हम्म in a triangle A plus B plus C is equal to 180. So A plus B/2 will be 90 minus C/2. तो अगर इन दोनों को मैं ले लूँ सिर्फ साइन ऑफ A माइनस बी, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन ऑफ A माइनस B/2, और नीचे इट इज सॉरी, और नीचे तो कुछ नहीं है, साइन ऊपर लिख लिया और ये 2 sin A plus B/2. तो ये जो नीचे वाली टर्म है, दिस हैज अ पावरफुल पोटेंशियल टू बिकम व्हाट, दिस हैज अ पोटेंशियल टू बिकम 2 sin C/2, 2 sin of 90 2 sin 90 minus C/2 and cos of 90 minus C/2. ठीक है. ठीक है. A² minus B², A² plus B² is equal to 2 sin A minus B/2 cos of A minus B/2 2 cos C/2 sin C/2. बेसिकली दिस इज साइन सी. पहले भी कर सकते थे हम, साइन सी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हाँ. साइन सी. और एक ये भी कर सकते हैं कि A/B कैन बी रिटन एज साइन A अपॉन साइन B. मतलब इसको लिख सकते हैं sin² A, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो दिस कैन बिकम A² by B² minus 1 upon A² by B² plus 1 is equal to sine of A minus B upon sine of A plus B. sin² A upon sin² B और -1 अपॉन sin² A अपॉन sin² B प्लस 1. मैं LHS से डील कर रहा हूँ अभी ये, हम्म और ये वाला यूज कर लेंगे. ये तो हमने कर, इसको ये जो ये लिखा हुआ है ये यही तो है, यस सर. है ना. तो लेफ्ट साइड पे इफ यू नोटिस यू आर गेटिंग sin² A minus sin² B divided by sin² A plus sin² B
इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू अपॉन 2 साइन, चलो जो भी है 2 साइन सी लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स नॉट लेंथन इट। अब एंगल में तो कन्वर्ट हो गया कम से कम। सो दिस इज साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी एंड दिस इज साइन ऑफ ए प्लस साइन सी। टू साइन सी। So this is how much? साइन ए माइनस साइन बी, राइट? तो कितना होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। Hmm. ओके, एंड तो ये तो कट गया, Yes, sir. एक तो कटा जाके, शुक्र है। हाँ. और दूसरा आया 2 जो साइन ए माइनस, इसका क्या बनेगा? साइन ए प्लस साइन बी का। साइन ए प्लस साइन बी, ये तो माइनस था ना, साइन ए माइनस का। इसमें उल्टा तो नहीं था? कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन थी, साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है? मेरे ख्याल से इसमें माइनस होता है पहले और कॉस प्लस होता है। हाँ. नीचे भी कुछ बन नहीं रहा है ठीक से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी साइन स्क्वायर। आई वॉज होपफुल कि इससे कुछ, इससे ठीक हो जाएगा। साइन स्क्वायर और राइट साइड पे आ रहा है हमारा साइन ऑफ ए माइनस बी और लेफ्ट पे आ रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। Again we are stuck. Ratio. Choices देखो, look at the choices. The choices are right angled and isosceles, मतलब कोई 90 भी आ सकता है, तीनों साइड बराबर। अच्छा, हिंट तो दिया हुआ है लेकिन यूज कैसे? हाउ डू वी पुट इट टू गुड यूज? आई कैन डू रिवर्स इंजीनियरिंग क्योंकि एमसीक्यू है। इफ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल हाँ. देन साइन 90 डाल दिया एक जगह पे ए प्लस बी को, और सी को 90 डाल लिया और ए प्लस बी भी 90 हो गया। और 90 डिग्री में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है, बट हम प्रूव कैसे करेंगे? यूजिंग द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट। कैन वी अप्लाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फॉर अ चेंज? लगा के देखें। ठीक ए है. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये कटा ठीक है. 2a स्क्वायर, ये कटा 2b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी, और नीचे क्या बन जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी।
और आई कैन राइट ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एज, अभी लिखा था हमने, साइन स्क्वायर बी अपॉन, ये लिख लेते हैं ना, ए बाय बी। तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर बी। हम्म, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी अपॉन 2 कॉस ए साइन बी। ये एक साइन ए कट गया, तो ये बन गया साइन ए, एक ये कट रहा है कुछ इसमें, ओ यार, अच्छा ये साइन स्क्वायर है ना ये भी, तो ये साइन बी भी कट गया। तो साइन ए बाय साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए बाय कॉस बी बाय, ये क्या, कॉस ए। ठीक है, तो मतलब साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी साइन बी। सो साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2b। सो a इज इक्वल टू b। दो एंगल बराबर आ गए। सो इट इज यस व्हाट, सर। आइसोसेलेस। लेकिन आइसोसेलेस की कोई चॉइस नहीं है, या तो लिखा आइसोसेलेस एंड राइट एंगल भी बताओ, आधा हो गया क्वेश्चन। एक पार्ट अभी भी है। यस सर। ओ बेटा, a इज इक्वल टू बी, एंगल मालूम चल गए, a इज इक्वल टू बी। सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। If a is equal to b, then 2a plus c is equal to 180. C is equal to 180 minus c. इक्विलेटरल की चॉइस तो खत्म हो गई। यस सर। द ओनली चॉइस इज अब राइट एंगल्ड, और राइट एंगल भी लाना है कहीं पे, मतलब हाउ डू वी ब्रिंग अ राइट एंगल ऑल्सो। आइसोसेलेस तो प्रूव कर दिया हमने कैसे भी, कॉम्बिनेंटो डिविडेंडो लगाया। a is equal to b. If a is equal to b, then नेपियर्स में डाल के देखें इसको। ठीक है। कई थ्योरम्स यूज कर सकते हैं ना, तो एक हम्म, इसमें तो साइन रूल यूज हुआ बेसिकली इसको हटाने में, और a इज इक्वल टू बी। अब कोसाइन में डालते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। कॉस ऑफ a इज इक्वल टू, लिख के देखें, कॉस ऑफ a कितना आएगा, कॉस ऑफ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और कॉस ऑफ b कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मैं सोच रहा था कि इससे ही कुछ कोसाइन दोनों के बराबर कर दो, और सब में क्या कॉमन आ रहा है, अगर इन दोनों को लूं और इन दोनों को लें और इन दोनों को लें, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ए कॉमन, राइट एंगल भी लाना है यार किसी विच है, और या तो राइट एंगल्ड है या आइसोसेलेस है। हमारी तो एक ही कंडीशन आई है भाई, साइन 2a इज इक्वल टू, अच्छा इफ साइन ऑफ 2a, इफ a इज इक्वल टू b, इफ साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन ऑफ 2c, तो ये कह सकते हैं कि 2a
कैन ऑल्सो बी रिटन एज, नहीं यार, साइन 2a a इज इक्वल टू b, जनरल इक्वेशंस, मतलब कल हमने पढ़ा था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, Yes, sir. सो थीटा इज इक्वल टू क्या आता था, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n अल्फा। तो अगर मेरा a इज इक्वल टू b है तो क्या ना n इज इक्वल टू 1 में प्लस, नहीं अल्फा तो पता ही नहीं ना, b है। तो मेरा था कि ये भी आ जाए कि a प्लस b इज इक्वल टू 90, ये तो पॉसिबल नहीं है। यू ऑल्सो नीड टू गेट इक्विलेटरल की ऑप्शन खत्म हो गई, या तो अब सिर्फ राइट एंगल रह गया प्रूव करना। डिड यू गेट अ फील ऑफ दिस, फील आ गई कि व्हाट आर वी डूइंग इन दीज क्वेश्चंस? Yes, sir. Okay. फील आ गई ना कि अगर फील आ गई तो आई थिंक मिशन अकम्प्लिश्ड है। क्वेश्चन में तो थोड़ी वी आर गेटिंग स्ट्रक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, बट ट्राई सम, कुछ को करके देखना, यू विल गेट देम इन एमएल। ठीक है। ट्राई सम, गेट योर हैंड्स स्लाइटली, ओ खुल, हाथ खुल जाएगा थोड़ा सा तो दिखने लग जाएगा, एक फील आ जाती है कि यार ओके देयर इज अ triangle in which the angles and sides get linked to each other in some ways। Yes, sir. जैसे कॉम्पिटेंट और डिविडेंड एक एक्स्ट्रा ट्रिक आ गई, सॉल्व हो गया, तो इजी। तो ऐसी कोई एक ट्रिक छुपी होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होगा तो उसके अंदर 3 थ्योरम यूज हो जाएंगी, तो Hmm. और कईयों में डायरेक्ट दिख जाएगा Yes, sir. कि कोसाइन का रूल है, साइन का रूल है, या नेपियर का है। Hmm. ठीक है जी, चलो।